this is me Khyati Maheshwari and you're watching my channel Charted Logics by Khyati Maheshwari. Now we are going to cover in this lecture auditing, which is related to CA inter auditing. फर्स्ट जो लेक्चर है वो मैं डाल चुकी हूँ, यू कैन चेक इट आउट इन द आई बटन और इन माई चैनल प्लेलिस्ट. ओके, सो वो जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर बेसिकली अपन ने बेसिक लेवल की बात करी थी. ओके, एंड आई नो दिस इज़ क्वाइट लेट, यू कैन अगेन वॉच इट एंड देन कम इन टू दिस lecture. Okay, I would recommend that highly. Now let us discuss what we have studied earlier. We studied that audit is derived from a Latin word known as audire, which means to hear, जिसका मतलब होता है सुनना. Now अपन ने audit की definitions भी पढ़ ली थी. अगर मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू दूँ कि अपने को इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स. Okay, so the first part is the meaning, that is the meaning of auditing. And the meaning of auditing we have already studied is that auditing is an independent examination. Auditing is an independent examination of financial information of any entity, whether it is profit oriented or not, irrespective of its size and legal form, with a view to express an opinion on the same. क्या व्यू होता है? With a view to express an opinion on the same. With a view to express an opinion on the same. Okay. So auditing is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size and legal form. ये तक की जो बात थी अपन ने पढ़ ली थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर. आई वांट कि अगर आप उसको रिवाइवल करना चाहते हैं, एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, तो छोटी सी वीडियो है, आप उसे जाके पहले ज़रूर देख लीजिएगा. ओके, उसके बाद में अपन आते हैं चैप्टर ओवरव्यू पर. मतलब अपन इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर के अंदर अपन उसे क्या क्या कवर करने वाले हैं. इससे आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. और अगर आपने ऑडिट पहले से पढ़ रखा है तो आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, सो the first we are going to cover is meaning, that we have studied earlier, and then the objective of auditing. What is the objective of auditing and what is the basic purpose of auditing? Scope of auditing, what is covered under auditing, what are the scope of audit, what are the aspects that we are going to cover in auditing subject, what are its advantages, and after advantages what normally comes is the limitations of auditing. After that, the types of auditing, ethical requirements of auditing, quality control of auditing, and the relationship between audit and other discipline. Other discipline means accounting, etc., economics. So relationship of auditing with other discipline. Now I would highly recommend that you must know this chapter overview. What this is going to help you is that जब अपने पास में एक ऐसा चैप्टर का ओवरव्यू होता है ना, एंड वी हैव स्टडीड द होल चैप्टर, व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन मेक आवर ओन शॉर्ट समरी हियर, और व्हाट वी कैन डू इज़ बाय रेफरिंग इनटू ओनली द हेडिंग, अपन अपने मन के अंदर उसका आंसर देख सकते हैं, अपन उसके मन के अंदर अपना आंसर दोहरा सकते हैं. उसके बाद में अपन जाके देख सकते हैं क्या वही आंसर एक्चुअली है या नहीं. दिस विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग मल्टीपल टाइम्स. ओके, दिस इज़ अ की नोट गाइज, दिस इज़ अ की नोट एंड you have to note this out. Okay, now meaning we have studied here the definition of auditing. Now the objective of auditing, this is also I have shared you earlier that SA 200 means overall objective of an independent auditor and conduct of the audit in accordance with SA standards on auditing. Okay, so the SA 200, which is the overall objective of an independent auditor and conduct of the audit in accordance with SAs, give that what is the objective of an audit. What is the objective of an audit? So there are two kinds of objective of audit. क्यों करते हैं अपन ऑडिट? अपने को ऑडिट करके क्या मिलेगा? तो दो चीज़ें मिलेंगी अपने को ऑडिट करने के बाद में. व्हाट? वी ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस.
अब इसका हर एक वर्ड जो है वो मैं साथ के साथ डिफ़ाइन करती रहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स मैं आपको इन 5 चैप्टर्स के अंदर पढ़ाने वाली हूँ, उसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। जब मैं आपको पढ़ाऊँ आप उसे अपनी ओन लैंग्वेज के अंदर नोट कर लीजिए। क्या होता है ना, आपको क्यों नहीं पढ़ा जाता है ICAI के मॉड्यूल से, आपको ऑडिट क्यों समझ में नहीं आता है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ICAI के मॉड्यूल से, क्योंकि वो लोग सोचते हैं आप BCom लेवल तक करके आए हो। अगर आप इंटर में आ गए इसका मतलब क्या है कि आपका BCom लेवल कंप्लीट है, और BCom लेवल कंप्लीट है इसका मतलब आपको बेसिक ऑडिट टर्म्स आते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग क्या होते हैं ना, वो फाउंडेशन पास करके या CPT पास करके आते हैं, तो उनको बेसिक ऑडिट के टर्म्स का मतलब नहीं पता होता है, और चैप्टर नंबर 1 से ही ICAI जो लैंग्वेज यूज़ करता है वो ऑडिट के टर्म्स के ऊपर ही करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये ऑडिट के जो टर्म्स हैं उसका मतलब पता चले। अब ऐसी कोई डिक्शनरी नहीं आती है जिसके अंदर खाली ऑडिट के वर्ड्स लिखे हुए हों और उसके आगे उनका मीनिंग लिखा हुआ हो। सो इसलिए अपने को ज़रूरी है शुरू से ही हर एक वर्ड का मतलब समझना। जब अपन शब्द का मतलब समझेंगे तभी उसका मीनिंग निकाल पाएंगे, और तभी अपन सेंटेंस फ्रेम करके खुद से उसे समझ पाएंगे। अपन ऑडिट खुद से क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अपने को वर्ड का मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है। वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सो मैं आपको हर एक वर्ड का मतलब समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय द वे, अगर मेरे से कोई वर्ड रह जाता है तो मैं चाहूँगी कि आप नीचे टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक है, वहाँ पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स तो आपके लिए है ही। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे रिकमेंडेशंस देते रहिए। ओके, नाउ to obtain a reasonable assurance. What do you mean by reasonable assurance? Reasonable assurance का मतलब होता है एक high level of assurance. Okay? एक high level of assurance, लेकिन absolute assurance नहीं होती है। Reasonable assurance is a high level of assurance, but it is not a absolute level of assurance. Absolute का मतलब होता है 100% ये चीज़ सही है। Like 10 + 10 = 20. ये 100% सही है, ये 100% सही है। बट क्या बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, आपको क्या 100% यकीन है कि अगर आपने सब कुछ चेक भी कर लिया है तो यहाँ पे कोई गलती नहीं हो सकती, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है, तो अपन 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं ऑडिटिंग के अंदर। अगर अपन ने सारे एस्पेक्ट चेक करे हैं तो भी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए अपन क्या कहते हैं, ऑडिटिंग के अंदर अपने पास में होती है एक रीज़नेबल एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ओके, so this is known as the reasonable assurance that financial statement as a whole, एक साथ एज अ होल, लोग बाग इस चीज़ को भूल जाते हैं, एज अ होल दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही लिख देते हैं। टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। एज अ होल कहाँ गया, एक साथ कहाँ गया, एक साथ होना चाहिए। खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, सारी चीज़ें एक साथ एज अ होल, ठीक है। एज अ होल जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिला दो, हर चीज़ जहाँ से भी कंपाइल हुआ है उस सारी चीज़ों को मिला दो। उसके रीज़नेबल एश्योरेंस हमको ऑब्टेन करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री, वो फ्री है, किस चीज़ से फ्री हैं, फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। मिस स्टेटमेंट्स का मतलब है गलती, मिस स्टेटमेंट का मतलब है गलती, और मटीरियल का मतलब है कि वो गलती जो है वो मटीरियल है, वो गलती जो है वो मटीरियल है। ओके, मटीरियल का मतलब होता है जिससे फ़र्क पड़ सके, जिससे फ़र्क पड़ सके। ओके, लाइक मटीरियलिटी लेवल डिफाइन करते हैं। लाइक एक, अब देखो मैं आपको हर एक वर्ड का मतलब समझा रही हूँ कि ये ना एक कंपनी है जो कि है, जो कमाती है आई थिंक 2000 रुपीज़। ओके, और उसके अंदर गफला हो गया 200 रुपीज़ का। तो वो जो 200 रुपीज़ का गफला हुआ है वो उसके लिए मटीरियल है, वो उसके लिए ज़रूरी है। ये जो मिस स्टेटमेंट हुई है, ये जो गलती हुई है, वो उसके लिए मटीरियल है। बट सपोज़ करो कि एक कंपनी है जिसका टर्नओवर है 2000 करोड़ रुपीज़ और उसके अंदर गलती हो गई है किसी से 200 रुपये की, तो क्या वो 200 रुपये उसके लिए मटीरियल है? तो नहीं, वो उसके लिए मटीरियल नहीं है। अपने को क्या देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल है वो फ्री हो मटीरियल मिस स्टेटमेंट के। छोटे मोटे मिस स्टेटमेंट हुए तो वो चलता है, ओके, मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए।
तो इसको शॉर्ट समरी देख लेते हैं दैट we have to obtain a reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement। कितनी जल्दी अपन को याद हो गया, और अगर अपने को इसके वर्ड के मीनिंग अगर पता हो तो अपन अच्छे तरीके से कैच कर पाएंगे। ओके, अच्छे तरीके से कैच कर पाएंगे। that we have to obtain a reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement. Now let us go to the second objective of audit. The first objective of audit is we have to obtain the reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatements. Now the second point is to report. अपने को क्या करना था, पहले तो ऑब्टेन कर लिया अपन ने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फ्री है क्या मटेरियल मिस स्टेटमेंट के या नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। अपन क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट the required by the standards on auditing in accordance with auditors finding। अपने को ये रिपोर्ट करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था या जो भी कम्युनिकेशन था जो कि रिक्वायर्ड था बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या फिर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, स्टैट्यूटरीज के हिसाब से, लॉ के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है, जो कम्युनिकेशन हुआ है ऑडिटर्स की फाइंडिंग के हिसाब से अपने को उसके ऊपर रिपोर्ट करनी है, ठीक है। अपने को रिपोर्ट करना है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and communication as required by statutory authorities or standards on auditing are accordance with auditor finding। Okay, so I hope you got the पॉइंट। इसके अंदर समझाने वाली कोई बात नहीं थी ज़्यादा, आप एक दो बार रीड करेंगे तो ऑफकोर्स आपको आ जाएगा। सो अपने 2 टॉपिक्स डन हो गए हैं, लर्न भी हो गए हैं। मीनिंग, द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। द ऑडिटिंग इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी whether profit oriented or not, irrespective of its size and legal form, with a view to express an opinion on the same। Now objective of audit is given under SA 200, overall objective of an independent auditor and conduct of the audit in accordance with SAs। Now SA 200 has two objectives. First, to obtain a reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement, and the second is to report on the financial statement and communicate as required by statutory authorities in accordance with auditor's finding। Now let us go to the scope of audit। What are the scope of audit? Scope of audit. Audit is organized adequately and cover all aspects of enterprise relevant to financial statements। जो ऑडिट है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करी गई है, इस तरीके से बनाई गई है कि वो एडिक्वेटली कवर कर पाए सारे आस्पेक्ट्स को एडुकेटली क्या कर पाएगी, कवर कर पाएगी। लाइक ऑडिट के अंदर अपन ने इस तरह से ऑडिट बनाई कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे आस्पेक्ट थे, जो बैलेंस शीट थी, जो P&L था, जो लेज़र था, जो जनरल था, उसको सबको कवर कर पाए। वो IC थी, जो भी चीज़ें थी उसको पूरी तरीके से कवर कर पाए। इस तरीके से अपने को ऑडिट को ऑर्गेनाइज करना है, ये काम होता है ऑडिट के अंदर। ओके, अपने को ओपिनियन देना है इंफॉर्मेशन के ऊपर, अब इंफॉर्मेशन जो होती है ना ऑडिट के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कहाँ से आती है। अगर कोई आपसे पूछे कि जो अपन ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ से आती है, किसी से भी जाके पूछ लीजिएगा, कोई आपको इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाएगा। अभी से लिख के बोल दे रही हूँ मैं। अगर आता है ये आंसर, अभी पॉज करो वीडियो को और नीचे कमेंट करके बताओ कि हमें ये आंसर आता था। अगर आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, और मतलब मैं बहुत ही इंटेलिजेंट मानूंगी उस इंसान को जिसको इसके बारे में पता हो कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, क्या 2 सोर्सेज हैं उस इन्फॉर्मेशन के। ओके, सो जो 2 सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के वो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या फिर अदर
रिसोर्सेज। अभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कौन से? अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर सोर्सेज। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो रिलायबल है और सफिशिएंट भी है। वो रिलायबल भी है मतलब कि वो उसके ऊपर अपन शक भी नहीं कर सकते, और वो इतनी सफिशिएंट भी है जिससे अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकें। ओके, अब देखो इन्फॉर्मेशन जो आई है वो दो सोर्सेज से आई है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर सोर्सेज। इससे जो इन्फॉर्मेशन अपने को कलेक्ट हुई है ये 100% दो तरीके की होनी ही चाहिए, तभी अपन इसको पास कर पाएंगे, ये बोल पाएंगे कि हाँ भाई इससे ही बने हैं अपने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, सो कैसे होने चाहिए? रिलायबल होने चाहिए, मतलब कि वो ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, और उसके बाद में अपन बोलेंगे कि वो सफिशिएंट भी होने चाहिए। सफिशिएंट भी होने चाहिए मतलब कि इस तरीके के होने चाहिए, इतने होने चाहिए कि अपन इससे ऑडिट आराम से कर पाएँ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही आपको इन्फॉर्मेशन दी है और इसी से आप पूरी ऑडिट करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए ऑडिटिंग का प्रोसेस करने के लिए। ओके, ना ओपिनियन के अंदर अपने को ये भी बताना है कि जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट थी कोई भी डिस्क्लोज़र की, उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज़ करा गया है या नहीं करा गया है। अब हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो। तो क्या होता है ना, वो बोलता है कि अपने को ये जो इन्फॉर्मेशन है या जो ये चीज़ें हैं वो ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दी गई हो। तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या कहता है कि आप उस चीज़ को प्रॉपरली डिस्क्लोज़ कर दो, आप उस चीज़ को प्रॉपरली डिस्क्लोज़ कर दो। तो वो डिस्क्लोजर्स भी अच्छे तरीके से दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं ये भी बताना ज़रूरी है ऑडिटिंग के अंदर। ये भी आता है स्कोप ऑफ ऑडिटिंग के अंदर, ये भी अपने को करना होता है ऑडिटिंग के अंदर। नाउ ऑडिटर जो करेगा वो असेट्स के अंदर इंफॉर्मेशन देखेगा कि वो रिलायबल है या सफिशिएंट है या नहीं है। इंफॉर्मेशन कहाँ से है मैंने आपको बता दिया है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर सोर्सेस। नाउ मेकिंग अ स्टडी एंड इवैल्यूएशन, वो ऑडिटर क्या करेगा, एक स्टडी करेगा और इवैल्यूएशन करेगा कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है और जो इंटरनल कंट्रोल है, आईसी का मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल्स, अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब होता है जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड बनाने का जो सिस्टम है, या फिर जो उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं कि हाँ भाई यहाँ पे पैसा आ रहा है और जो चीज़ उसका रिकॉर्ड कर रहा है वो अलग अलग हो, वो दोनों अलग अलग हो, बीच में एक और मीडिएटर हो, तो बहुत अच्छी बात है। ये इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा बन जाएगा, आपके अकाउंटिंग सिस्टम का कंट्रोल बनाना ज़रूरी है। उसका स्टडी करेगा, उसका इवैल्यूएशन करेगा और बोलेगा कि वो रिलायबल है या सफिशिएंट है या नहीं है। ओके, इस चीज़ के लिए जानने के लिए कि वो रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं है, वो क्या करता है, वो कैरी आउट करता है कुछ टेस्ट, कुछ इंक्वायरीज या अदर वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसेस को ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के भी और जो बैलेंसेस गिवन अंडर बैलेंस शीट है उनके भी। ओके, नाउ देखो मेरे ये जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं इसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आप जाके एक बार जहाँ तक मैंने पढ़ाया है एकदम मैंने स्टडी मटेरियल से ही ये सारे नोट्स बनाए हैं, आपके न्यू सिलेबस के स्टडी मटेरियल को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये सारे नोट्स प्रिपेयर करे हैं। एंड मैं चाहूँगी कि आप एक बार इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो आप इसके बाद में एक रीडिंग ज़रूर दे दीजिएगा स्टडी मटेरियल की। एंड आफ्टर दैट अगर आप एक बार और इस वीडियो को देख लेते हैं तो जो क्लैरिटी आपको मिलेगी उसका मुकाबला नहीं है। ओके, और उसके बाद में भी अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन होता है तो ऑफ कोर्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ना ऑडिटर की जो ड्यूटी होती है वो एक तो स्कोप की होती है, एक आउट ऑफ स्कोप होती है। जो स्कोप के अंदर उसकी ड्यूटीज़ प्रिस्क्राइब्ड है कि आपको ये काम करने हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जो आउट ऑफ स्कोप वर्क है, जो आपको बोल दिया इस चीज़ की वैल्यू करो, भले ही आपको पता नहीं है कि ये चीज़ कितने की आती है मार्केट के अंदर, कोई मशीनरी की वैल्यू करवा रहे हैं आपसे, तो वो आपके आउट ऑफ स्कोप हो जाता है और ऐसी चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ ओपिनियन जो होता है ऑडिटर का वो बेस्ड होना चाहिए, उसके जजमेंट और प्रोसीजर वो कंडक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग, और वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए। ये जो होने चाहिए, जो जजमेंट होना चाहिए, जो प्रोसीजर होना चाहिए वो अनबायस्ड होना चाहिए
और अप्रोप्रिएट होना चाहिए ऑडिटिंग के लिए। सो यहाँ पे अपना थर्ड टॉपिक भी ख़त्म होता है। एकदम से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या था? मीनिंग था। सेकंड टॉपिक क्या था? ऑब्जेक्टिव था, ऐसे 200। और थर्ड टॉपिक क्या था? स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप क्या है? ऑडिटिंग का। ये सारे मैंने आपको अच्छी तरीके से स्कोप मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं ऑडिट के अंदर, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब अपन पढ़ेंगे आस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। एक्चुअली अपने को ऑडिट के अंदर क्या क्या करना होता है, अपने को क्या क्या करना होता है, आस्पेक्ट्स क्या क्या हैं जो भी कवर्ड हैं ऑडिटिंग के अंदर। इसके बारे में तो दो सिंपल से टॉपिक्स ही बढ़ जाती हैं, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। यहाँ तक ही मैं आपको कवर करवाऊँगी इस लेक्चर के अंदर। तो अपन देख सकते हैं, एक बार पहले देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। मीनिंग हो गया अपना, ऑब्जेक्टिव हो गया अपना, स्कोप हो गया अपना, आस्पेक्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब कि 6th पार्ट तक मैं आपको करा दूंगी। टोटल है 10 पार्ट। तो ये जो होगा ये होगा आपका सेकंड पार्ट के अंदर। और मतलब कि फर्स्ट पार्ट तो था ये वाला जिसके लिए मैंने बेसिक्स वगैरह कवर करवाए। सेकंड पार्ट हो गया ये वाला जहाँ तक मैंने आपको करवा दिया ऑब्जेक्टिव, स्कोप, आस्पेक्ट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैं आपको करवा ही दूंगी। थर्ड पार्ट हो गया अपना ये वाला जिसके अंदर मैं बाकी ये सारी चीज़ें करा दूंगी, जो कि है टाइप्स ऑफ ऑडिट, एथिकल रिक्वायरमेंट्स इन ऑडिट, क्वालिटी कंट्रोल एंड रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन। एंड देन जो अपना फोर्थ पार्ट होगा वो एक सरप्राइज पार्ट होगा। जो अपना फोर्थ पार्ट होगा वो एक सरप्राइज पार्ट होगा। सो अगर आप इस वीडियोस को अच्छी तरीके से देख रहे हैं तो आई एम डैम श्योर जो फोर्थ पार्ट होगा ना, वो आपको जो सेल्फ असेसमेंट देगा उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैं ट्राई करूँगी अगर वो फोर्थ पार्ट मैं लाइव ले पाऊँ तो। नाउ आस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। आस्पेक्ट क्या क्या है कवर होने के ऑडिट के, अपने को क्या क्या करना है ऑडिट के अंदर, वो आता है आस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट के अंदर। ठीक है, अपने को क्या क्या करना है ऑडिट के अंदर वो आता है आस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ अपने को करनी है द एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। अपने को एग्जामिनेशन करना है किस चीज़ का कि जो सिस्टम है फॉर अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल वो सही है या नहीं है। अकाउंटिंग जो हो रही है वो ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है, और अकाउंटिंग के बाद में जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, जो पैसा जिसको एक्चुअली मिल रहा है वो इंसान अलग है या नहीं है। अब इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर अपन डिटेल में अगले चैप्टर्स के अंदर पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अपने को ऑडिट के अंदर ये चीज़ सबसे पहले चेक करनी होती है, ये चीज़ सबसे पहले एग्जामिन करनी होती है दैट द अकाउंटिंग जो सिस्टम है, जो इंटरनल कंट्रोल का जो सिस्टम है वो अफेक्टिव है या नहीं है। ओके, उसके बाद अपने को चेक करना होता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका मतलब हुआ कि जो मैथमेटिकली गड़बड़ हो सकती है पोस्टिंग के अंदर, लेज़र के अंदर जो गड़बड़ हो सकती है, जो अपन बोल सकते हैं कि उतारने में गड़बड़ हो गई है, कुछ चीज़ को लिखने में गड़बड़ हो गई है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी दैट सपोज़ करिए ये अपने को चेक करना है। ओके, ये चीज़ अपने को चेक करनी है। अब क्या हुआ, अपने को सपोज़ करना था ये ऐड लगाना था। ओके, अपने को ये ऐड लगाना था। अब ये ऐड लगाने में गड़बड़ हो गई है, या इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना था तो अमाउंट लिखने में गड़बड़ हो गया है। 1 लाख और 10,000 एक साथ था, अपन ने ऊपर लिख दिया 1 लाख और नीचे लिख दिया मतलब ऊपर लिख दिया 10,000 और नीचे लिख दिया 1 लाख। अब ऐसी गलती हो सकती है। ठीक है, इसी को कहते हैं कि अपने को अब क्या चेक करना है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करनी है। जो मैथमेटिकली रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं उसको अपने को चेक करना है। ओके, ना अपने को वेरिफिकेशन करना है ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन का, दैट इज़ द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं है, क्या ये चीज़ वैलिड है या नहीं है, क्या ये चीज़ 100% रिलायबल है या नहीं है। इस चीज़ का अपने को क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। देन अपने को ये चीज़ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या प्रॉपर डिस्टिंक्शन हो रखा है या नहीं हो रखा है, प्रॉपर डिस्टिंक्शन हो रखा है या नहीं हो रखा है ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के आइटम का। कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के आइटम का प्रॉपर डिस्टिंक्शन हो रखा है या नहीं हो रखा है, क्या चीज़ कैपिटल है, क्या चीज़ रेवेन्यू है, इस चीज़ का पूरा डिस्टिंक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ
कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वो 12 मंथ्स वाली बात की। अगर ये 12 मंथ से ज़्यादा चलेगा तो कैपिटल 12 मंथ से नहीं ज़्यादा चलेगा, जैसे कि इन्वेंटरी जो कि हमेशा होती है रेवेन्यू नेचर की। ओके, ना वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ असेट। असेट के लिए अपन को क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, अपने को ये चीज़ें चेक करनी होती है कि टाइटल अपने पास में है, क्या ये हाईलाइटर, ये जो असेट है मेरा, ये इसका टाइटल मेरे पास में है, क्या ये मेरा है, तो यस इसका टाइटल मेरे पास में, क्या ये एग्जिस्टेंस में भी है या मैंने ऐसे ही बैलेंस शीट के अंदर लिख रखा है कि हमारे पास में 1-2 हाईलाइटर हैं। नहीं, ये सच में एग्जिस्टेंस में है। फिज़िकल वेरिफिकेशन से पता करो कि हाँ, इसको जाके चेक करो कि क्या इसके पेपर्स चेक करो, क्या ये इसका मेरा टाइटल है, इसको जाके देखो क्या इसके ये एग्जिस्टेंस में भी है या नहीं है, और इसकी वैल्यू देखो। मैंने इसकी वैल्यू लगा रखी है, सपोज़ करो 500 रुपये, क्या ये 500 रुपये की वैल्यू रखता भी है या नहीं रखता है, इसका बिल चेक करो, एक्सेट्रा। मार्केट में पता करो, अदर सोर्सेज से पता करो। तो ये चीज़ होती है वैल्यू का पता करना, टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू का पता करना ऑफ एनी एसेट। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी, अपने को इस तरीके से वेरिफिकेशन करना है ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, अपने ने क्या किया, एग्जामिनेशन किया ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल्स, अपन ने अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, अपन ने वैलिडिटी चेक करी ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, ये चीज़ देखा कि क्या चीज़ रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर अच्छी तरीके से डिस्टिंग्विश्ड है या नहीं है। असेट का अपन ने देखा टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू। उसी तरीके से अपन ने वेरिफिकेशन किया है ऑफ लाइबिलिटी, बेसिकली अपन ने वेरिफिकेशन किया है असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का। उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी को। अपन को अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी को रिपोर्टिंग करनी है, अपना ओपिनियन देना है, अपनी रिपोर्टिंग करनी है, जिसके अंदर अपने को मेंशन करना है कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हुई हैं या नहीं हुई है, ऐसे के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, यही चीज़ एस्पेक्ट्स हैं जो कि कवर होते हैं ऑडिट के अंदर, यही अपने को करना होता है। ऑडिट के अंदर बेसिकली चेकिंग करनी होती है, हर चीज़ की चेकिंग करो और उसके बाद में रिपोर्ट दे दो, हर चीज़ की चेकिंग करो उसके बाद में रिपोर्ट दे दो। अब क्या किस किस चीज़ों की कैसे कैसे चेकिंग करनी है वही अपन सीखते हैं ऑडिटिंग सब्जेक्ट के अंदर ना। सो अपन ने क्या कर लिया है अब तक, देखो मीनिंग कर लिया, ऑब्जेक्टिव कर लिया, ऐसे 200 स्कोप कर लिया, 7-6 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, एस्पेक्ट्स कर लिया, इसके मैंने आपको 7-6 पॉइंट्स पढ़ाए हैं। उसके बाद में अब लास्ट टॉपिक्स अपने पास में बढ़ लेते हैं कि अपने को ऑडिट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ऑडिट करने से क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं और क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं ऑडिटिंग की। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, ऑडिट करने से अपने को क्या मिलेगा, ऑडिट करने से ऐसा क्या मिलेगा जो अपन ऑडिट करें। तो ऑडिट करने से सेफ गार्ड होता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्सन। किस पर्सन का सेफ गार्ड, किस पर्सन का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा, वो पर्सन जो कि नॉट एसोसिएट हैं ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सपोज़ करो कि जो ओनर्स थे उन्होंने पैसा दे दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खर्चा करने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि उनका जो शेयर होल्डर का पैसा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया था कंपनी को चलाने के लिए, वो सही जगह पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, कंपनी के अंदर यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसलिए वो लोग क्या मांगेंगे कि हमें तो भाई ऑडिटेड बैलेंस शीट दो, हमें ऑडिटेड बैलेंस शीट दो। ऑडिटर को बोलना चाहिए कि जो 10 करोड़ 100 करोड़ रुपीज़ हमने दिए थे वो इस चीज़ों के अंदर खर्चा जो आपने बताया है उसी के अंदर खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है, उसी चीज़ के अंदर खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है। तो बेसिकली ऑडिट क्या कर रहा है, उनके जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जो डिबेंचर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स जिन्होंने भी पैसा दिया है, अब मैं पैसे की बात कर रही हूँ लेकिन और भी जने हो सकते हैं जिनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को, सपोज करो वर्कर्स हो सकते हैं जो कि रिलेटेड नहीं है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को लेकर या ओनर्स ऑफ द कंपनी को लेकर, उनकी जो इंटरेस्ट है उनको सेफ गार्ड करने की कोशिश करी जा रही है ऑडिट करने के थ्रू। नाउ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़। अब क्या होता है ना कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोस्टली क्या कर देते हैं, गफला कर देते हैं। उनके मोरल को चेक करने के लिए क्या होता है, अपन बोल देंगे आज ऑडिटर आ रहा है, अचानक से ऑडिटर पहुंच जाए, अचानक से ऑडिटर पहुंच गए और सपोज़ करो कोई इन्वेंट्री मैनेजर था, ठीक है, कोई इन्वेंट्री, आई डोंट नो कुछ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट सपोज़ करो कोई इन्वेंट्री मैनेजर था। अब ये पेन्स है मेरे पास में, ये पेन्स के सेट है मेरे पास में, इतने ब्लैक हैं, ब्लू हैं,
ये सारे पेन्स के सेट हैं। अब है ना, इन्वेंट्री जो मैनेजर था उसने क्या किया, एक पेन का गफला कर दिया। उसने एक पेन का गफला कर दिया और उसने सोचा कि किसी को क्या पता चलेगा। बट सपोज़ करो ऑडिटर आ गया इसका फिज़िकल वेरिफिकेशन करने के लिए, और उन्होंने गिने कि कितने हैं ये, लेकिन उनको क्या पता चला कि इसमें तो एक कम है, इसमें तो क्या है, एक कम है। ऐसे में क्या होगा, एक मोरल चेक रहेगा एम्प्लॉयज़ के ऊपर। एम्प्लॉयज़ को डर रहेगा कि अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया, अगर हमने कुछ गड़बड़ कर दी तो ऑडिटर आएगा और उसको पता चल जाएगा, और फिर हमारे जो भी हमारा वन सेकेंड जो भी हमारा एम्प्लॉयर है उसको पता चल जाएगा कि हम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल चेक रहेगा, इस तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ऊपर मोरल चेक रहेगा ऑडिटिंग करने से। ये है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। नो, हेल्पफुल इन सेटलिंग लाइबिलिटीज़ फॉर टैक्सेस। टैक्सेस की लाइबिलिटीज़ को सेट करने के लिए, टैक्सेस की जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको चेक करने के लिए हेल्पफुल रहता है ऑडिटिंग। किस तरीके से हेल्पफुल रहता है ऑडिटिंग? इन सेटलिंग द लाइबिलिटीज़ ऑफ टैक्सेस, क्योंकि जो टैक्सेस निकलते हैं वो किसके ऊपर निकलेंगे? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऑडिटेड है उसका जो टर्नओवर होगा उसके ऊपर ही निकलता है अपना टैक्स, उसके ऊपर ही जो है अथॉरिटीज़ चाहती हैं कि टैक्स निकले। इससे क्या होगा, सेटल करने में लाइबिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। उसके ऊपर ऑडिटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं कि हाँ भाई, अगर ऑडिटर ने इस चीज़ को चेक करा है तो एकदम जेन्युइन होगा, एकदम सही होगा। ओके, नाउ ऑल्सो हेल्पफुल इन सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सपोज़ करो वर्कर थे, सपोज़ करो कौन थे, वर्कर्स थे। वर्कर्स ने क्या बोला कि हमारा जो पैसा है वो ज़्यादा बनता है, जो कंपनी है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है लेकिन हमको वो प्रॉफिट नहीं दिया है, हमको उस प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं दिया है। ऐसे करने से क्या होगा कि हेल्पफुल हो जाएगी ऑडिटेड बैलेंस शीट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपन बोल देंगे वर्कर्स को, या जो लोग भी ट्रेड डिस्प्यूट कर रहे हैं उन लोगों को कह देंगे कि ये देखिए ये ऑडिटेड बैलेंस शीट है, हमारा कोई भी नहीं है हिस्सा इसके अंदर। जो ऑडिटर है उसने अच्छी तरीके से इसको चेक करा है और तब जाके बोला है कि हाँ भाई ये एकदम 100% रिलायबल है। उसने हमारे को एक क्लियर ओपिनियन की रिपोर्ट दी है, एक क्लियर रिपोर्ट दी है। तो ऐसा क्या होगा कि ना वर्कर्स जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, और इससे क्या होगा, जो ट्रेड डिस्प्यूट होगा उसको सेटल करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये भी एक एडवांटेजेस होता है ऑडिट का। नाउ जब ऑडिट होती है तो अपन चेक करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स को और अकाउंटिंग को। अपन चेक करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स को और अकाउंटिंग को। ओके, जो इससे क्या होगा, जब ऑडिटर चेक करेगा इंटरनल कंट्रोल्स को या अकाउंटिंग को या फिर कोई से भी प्रोसेसेस को, तो वो पता लगा सकता है कि कहाँ कहाँ पे वेस्टेज और लॉसेस हो रहा है, डिटेक्शन कर सकता है कहाँ कहाँ पे वेस्टेज एंड लॉसेस हो रहा है, और वो कम्युनिकेट कर सकता है मैनेजमेंट को। ये बात वो कम्युनिकेट कर सकता है मैनेजमेंट को इस बात को। जब वो इस बात को कम्युनिकेट करेगा, जब इस बात को वो लोग कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा, उससे अगर तो डिटेक्शन हो जाएगा वेस्टेज ऑफ लॉसेस का, और वो इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। जो लॉसेस हो रहे हैं कंपनी के अंदर उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, और ऑडिटिंग से अपनी कंपनी को बेसिकली फ़ायदा हो सकता है, ताकि वो लॉसेस और जो वेस्टेज है वो नहीं हो आगे से। ओके, नाउ ऑडिट ascertain whether necessary books on accounts or records have been properly kept। ऑडिटिंग हमेशा बताता है अपने को कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो अपने को मेंटेन करने थे या जो रिकॉर्ड्स अपने को मेंटेन करने थे वो प्रॉपरली केप्ट है या नहीं है, प्रॉपरली बनाए गए हैं और प्रॉपरली रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं। ये चीज़ ऑडिटिंग बताएगा अपने को, ऑडिट करने से अपने को ये चीज़ पता चल जाएगी। ये भी है एक एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। उसके बाद में कहते हैं कि ऑडिट रिव्यू करता है एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने आपको बात बताई थी कि आईसी और अकाउंटिंग को जो है ऑडिटिंग
चेक करता है, ऑडिटर चेक करता है एग्जिस्टेंस को और ऑपरेशन को, कि देखो इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते हैं भी या नहीं है, लॉक लगा के जाते हो या नहीं लगा के जाते हो, और पैसा कोई और पैसा जो ले रहा है वही अकाउंटिंग एंट्री कर रहा है तो और वही ओनर है, तो वो छोटा बिजनेस है कि बड़ा बिजनेस है। तो ये जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते, और अगर एग्जिस्ट करते भी है, ताला लगाया भी है, तो उसका ऑपरेशन होता भी है अच्छे से या नहीं होता है, उसको चेक भी करते हो या नहीं करते हो। तो इससे ऑडिट एक बार रिव्यू कर देता है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, और ऑपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में इट हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड द डेथ ऑफ पार्टनर्स। ये आ गई पार्टनरशिप की बात। तो देखो अगर जो चीज़ें होंगी, जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो अगर ऑडिटेड होंगे, तो अगर कोई भी पार्टनर आ रहा है या पार्टनर जा रहा है तो उसके जो भी अकाउंट्स होंगे उसको सेटल करने के अंदर आसानी होगी, क्योंकि वो नहीं बोल सकता कि इस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके अंदर कोई भी गड़बड़ी है। तो जो भी वो अकाउंट्स होंगे उसके हिसाब से अपन उसका सेटलमेंट कर सकते हैं, चाहे एडमिशन हो रहा हो, चाहे रिटायरमेंट या डेथ हो रही हो उस पार्टनर का। तो ऐसे में सेटलमेंट करने में आसानी होती है, क्योंकि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक ट्रस्ट बन जाता है। ओके, नाउ गवर्नमेंट में रिक्वायर्ड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट। ऑडिटर जो गवर्नमेंट है उसको रिक्वायर्ड हो सकता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर सर्टिफिकेट और या फिर स्टेटमेंट्स का। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट अगर बोलती है कि हम आपको मुद्रा लोन देते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमको आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए, हम आपके बिज़नेस को लोन दे रहे हैं लेकिन हमको आपके बिज़नेस की पास्ट 3 ईयर्स की ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए। तो ऐसे गवर्नमेंट भी मांग सकती है आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट। ऑडिटेड चीज़ों पे क्या होता है, गवर्नमेंट को भी एक ट्रस्ट होता है, पब्लिक को भी एक ट्रस्ट होता है एक चार्टेड अकाउंटेंट की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, कि उन्होंने जो अकाउंट्स है उसको अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा, सारी चीज़ें चेक करी होंगी, जो भी मैंने आपको एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट बताए थे, जो चेक करना है एग्जिस्टेंस को, इंटरनल कंट्रोल्स को वेरिफिकेशन करना है, लायबिलिटीज़ का, असेट का, ये सारी चीज़ जो आप ऑडिटिंग के अंदर सीखोगे, जो आप प्रैक्टिकली सीखोगे वो आपने सच में करे हैं। इसीलिए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है सोसाइटी को, और इसीलिए ऑडिटिंग से मिलते हैं इतने सारे एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, सेफगार्ड होता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट का उन पीपल का जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, मोरल चेक रहता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, हेल्पफुल रहता है इन सेटलिंग लायबिलिटीज़ फॉर टैक्सेस, ट्रेड डिस्प्यूट के अंदर भी हेल्प करता है, डिटेक्शन कर सकता है वेस्टेज एंड लॉसेस का। उसके बाद में ये बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर्ली केप्ट हैं या नहीं है। फिर उसके बाद में वो रिव्यू करता है कि एग्जिस्टेंस और ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है इंटरनल कंट्रोल्स का। उसके बाद में वो बोलता है कि सेटलिंग ऑफ अकाउंट्स, जो कि रिटायरमेंट या डेथ या एडमिशन हो रहा है पार्टनर्स का, वो उसके अकाउंट्स को सेटल करने के लिए आसान होता है अगर आपके पास में हो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उसके बाद में है कि गवर्नमेंट को भी ट्रस्ट होता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और वो कई बार ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट को रिक्वायर्ड करता है। ओके, वो रिक्वायर करता है कि आप भेजो उन्हें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स बाय चार्टेड अकाउंटेंट्स या ऑडिटर। ओके, अब अपन पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, और अपन इसे कहेंगे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अपन इसको बोलेंगे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, आइला। ओके, आइला, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। नाउ आइला है NN नॉट, NN नॉट, ओके, डबल N के साथ में नॉट। ठीक है, ये एक निमोनिक है इसका, आइला का निमोनिक है N नॉट, N नॉट, N नॉट। ओके, एन मतलब देखो कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि इनहेरेंट होती हैं ऑडिटिंग के अंदर। ऑडिटिंग का जो प्रोसीजर होगा उसके अंदर एक कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसके कारण उसके इनहेरेंट के अंदर ही कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जो है वो भरी हुई हैं। ठीक है, इसको अपन क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्या क्या है वो लिमिटेशन। इज़ द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही इस तरीके की है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ही आपको 2 तरीके दे रखे हैं, 3 तरीके दे रखे हैं, 3 तरीके में भी 10 तरीके दे रखे हैं। तो क्या होता है ना कि एक
दो तरीके एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इस तरीके से क्या होता है, अपने पास में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसको अपन अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर सकते, अच्छे तरीके से चेक नहीं कर सकते हैं। तो वो बना ही इस तरीके से है कि अपन उसको चेक ना कर पाएँ, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, ऑडिटिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाती हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर है कि ऑडिट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। ऑडिटिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। अब इसके लिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। मैं वैसे चाहती हूँ कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट मैं आपको अच्छी तरीके से बाद में समझाऊँ, क्योंकि अभी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा अगर आप फर्स्ट टाइम ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने इसका निमोनिक बनाया है कि अगर आपने पहले कहीं पे इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग पढ़ रखी है तो आप इस निमोनिक से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ओके, नाउ इस निमोनिक से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। बट मैं क्या करूँगी, पूरा चैप्टर नंबर 1 आपको करा दूँगी। उसके बाद में लास्ट में जब चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होने वाला होगा तब मैं आपको इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट जैसे कि आइला है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी, बट अभी मैं थोड़ा ऊपर से आपको इस चीज़ को पढ़ा दे रही हूँ कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जो ऑडिट प्रोसीजर है वही इस तरीके से हैं कि वो अपनी चीज़ों को लिमिट कर देते हैं, अपनी जो एग्ज़ामिनेशन है उसको लिमिट कर देते हैं। तो ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट का, जो कि उसके अंदर फंसा हुआ है जिसको अपन ख़त्म नहीं कर सकते। नाउ अदर मैटर्स भी हैं जिसके कारण इनहेरेंट लिमिटेशंस रहती है। नाउ टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कवर अप करने का भी एक टाइम होता है, एक टाइम दे रखा है कि हाँ भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो टाइमली ख़त्म हो जानी चाहिए। और अपने को ये भी देखना है कि बैलेंस बनाना है अपने को बेनिफिट एंड कॉस्ट के ऊपर, जो अपने को बैलेंस बनाना है बेनिफिट एंड कॉस्ट के ऊपर। मतलब कि जो अपन ने ऑडिट कराई और सपोज़ करो ऑडिटर ने फ़ीस ले ली 10,000 रुपीज़, ठीक है, लेकिन अपनी जो बिज़नेस है उसका टोटल टर्नओवर ही 2 लाख रुपीज़ है और इसको तो मैं खुद ही चेक कर लेता, तो क्या इसकी कॉस्ट इसकी बेनिफिट को बढ़ा रही है या कम कर रही है? तो मेरे ख्याल से इस केस के अंदर ऑडिटिंग कराना बेकार बात है। ऑडिटिंग आप खुद कर सकते हैं, इतना चेक आप खुद अपनी एंटिटी के ऊपर रख सकते हैं। तो इस चीज़ के अंदर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आपको एक बैलेंस बना के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या ये बेनिफिट आपकी उसकी जो कॉस्ट है उसके हिसाब से है या नहीं है। सो ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिटिंग की। आई थिंक कि ये चीज़ मैं आपको फिर पढ़ा दी कि टाइमलीनेस से कंप्लीट होना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। इसका मतलब है कि अगर जितनी जल्दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लीट होगी उतनी अच्छी तरीके से अपन उतनी ज़्यादा देर अपन ऑडिटिंग कर पाएंगे। और ऑडिटिंग अपन तब करना चाहिए जब एक बैलेंस बन सके बिटवीन बेनिफिट एंड इट्स कॉस्ट। मैंने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, लेकिन अभी मैं नहीं कहूँगी कि मैंने पूरी तरीके से आपको इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग पढ़ा दिया है, बाकी सब कुछ फुली कवर्ड है। इसके बाद में आपको मॉड्यूल ज़रूर से देखना है। मॉड्यूल देखने के बाद में टाइम मिले तो 2 की स्पीड में देखिए, हो सकता है आप अभी भी 2 की स्पीड में ही देख रहे हूँ, और 2 की स्पीड में इसको एक बार ज़रूर से कवर अप कर दीजिए। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी, आई थिंक 1 आवर की मुश्किल से बनेगी, 1 आवर की भी नहीं बनेगी, आई थिंक 40 to 45-50 मिनट्स की वीडियो बनेगी, जिसके अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 का हाफ पोर्शन ऑलमोस्ट करा दिया है। मीनिंग अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करा दिया, ऐसे 202 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अंदर स्कोप पढ़ा दिया, एस्पेक्ट्स पढ़ा दिए, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग पढ़ा दी, एंड लिमिटेशंस जो कि है आइला इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग NNOT नॉट, ठीक है, अदर टाइमलीनेस एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, नेचर ऑफ ऑडिटिंग एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, इस तरीके से देखिए कितना फ़ायदा हुआ इस चार्ट का। मैंने आपको अभी इस चीज़ का फ़ायदा दिखा दिया कि इस चार्ट का कितना ज़्यादा फ़ायदा है, तो आप इस चार्ट का अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करिए। और मुझे प्लीज़ से ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में रिव्यूज़ देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लस मैं आगे जाके भी इस तरीके की वीडियोस ला सकती हूँ अगर मुझे अच्छे रिव्यूज़ अच्छे व्यूज़ मिले इस वीडियो के अंदर। ओके,
क्योंकि इट टेक्स टाइम, ओके, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स। सो अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला है तो आप मुझे इनकरेज करने के लिए, बताने के लिए कि हाँ भाई इस वीडियो से मुझे सच में फ़ायदा मिल रहा है। मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, ओके। अगर आपको इस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है तो मैं बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोस से कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है तो मैं आपके लिए ये वीडियोस बनाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हो सकता है मैं कुछ डिफरेंट टेक्निक्स से आपको समझाने की कोशिश करूँ, या हो सकता है कुछ और चीज़ लाऊँ, ठीक है। सो आपका कोई भी रिव्यू हो, कोई भी कमेंट हो, मुझे ज़रूर से बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो नहीं, इससे नेक्स्ट वीडियो, इससे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो या इससे दूसरे किसी सब्जेक्ट की वीडियो आपको इस चैनल पे ज़रूर से मिल जाएगी। आप कमेंट करके मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स, सजेशंस, कमेंट्स, रिव्यूज़, कुछ भी जो भी मन में आए इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ ना कुछ करके ज़रूर जाना है। लाइक करना है, डिसलाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, कुछ ना कुछ करके जाना है, तभी पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को देखा, ओके। ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, जल्दी से आप जाइए, लेक्चर नंबर 1 देखिए, लेक्चर नंबर 2 देखिए, लेक्चर नंबर 3 और 4 मैं जल्द ही लाने वाली हूँ। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ख्याति माहेश्वरी एंड यू आर वॉचिंग चार्टर्ड लॉजिक्स बाय ख्याति माहेश्वरी।